So now I am sharing the screen. So first of all आपका syllabus देख लेते हैं. Here it is your design of steel structures. That is a 501 BTC VC, isn't it? So here it is the your content of the course, that is a steel design, isn't it? In all there are 6 modules. Module 1, 2, 3, 4, 5, 6. So one more thing here it is to be highlighted is that which type of design we have to refer. It is clearly mentioned over here. See, contents of module 1 to part 6. Yani all of the above 6 topics in a module shall be taught with the help of relevant text or reference books based on, remember it is based on elastic design concept. It is a elastic design concept IS 800 1984. Here there it is a comma. So you have to learn everything about the part 1 to 6 by using 800 1984. Means it is a working stress method. It is a elastic design concept. And another part is the use of 800 and 2007 and handbook, etc., etc. It is for permitted for theory examination. But while designing, you have to refer 800 1984, which is based on working stress method, isn't it? So let me confirm. Unmute yourself, one of you. That is it. In your college, they are teaching with working stress method. Is it confirmed? Yes, sir. Okay, so we have to follow working stress method. That is why using 800 1984. Okay, सही है? Yes, sir. Okay, we will continue with the working stress method 800 1984, which is a, here it is the your IS code. I have just shown some parts. You may available with from internet download, PDF download, but in that PDF one page is missing, page number 96. Whatever the PDF available online from your internet, in that page number 96 is missing. For that purpose, from original IS 800 1984, here I am giving you page number 96 in original. I will show it afterwards. So here are the certain parts of that IS code, contents, etc. We will discuss about this part later on. Okay. So there are certain clauses we have to refer while designing the steel part. आपको डिजाइन करते समय दो IS कोड यूज करना है, एक 1984 वाला और दूसरा जो लोड के लिए है, पार्ट 1 2 3 है, as mentioned in your syllabus. So here it is 875 all parts. There are in all 3 parts, first, second, third. First part is related to dead load, second part is related to lie load, and the third part is related to wind load. Another 4 and 5 are there, but which is not workable for us at this stage. Part 1 for dead load, part 2 is for lie load, and part 3 is for wind load. We will see later on about that parts, etc. So here it is your initial certain parts of the IS code. Okay, coming back to your syllabus part of view, here it is the module number 1, that is introduction and connections. जैसे कि मैंने बताया आपको डिजाइन करते समय वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करना है. सो व्हाइल यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड देयर आर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. जैसे अभी मैंने देखा लास्ट टाइम भी इस बैच का ट्यूशन जब लिया था तो आपको सेपरेट रिवेटेड बोल्टेड और वेल्डेड का प्रॉब्लम एज सच एग्जाम में अपियर होने का चांस बहुत कम है, बिकॉज रेस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स कंसिस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉइंट इटसेल्फ. यानी एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर हो या टेंशन मेंबर हो, वहां पे तो कनेक्शन आपको डिजाइन करना ही है. तो इसलिए सेपरेट ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक तो दिखा नहीं आपके इसमें, फिर भी हमें सब कुछ करना है. ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का है. आज मैं क्या करूंगा, आपको डेमो के लिए मैंने एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड का लेक्चर जो यूट्यूब में पब्लिश किया वो दिखाया मैंने. मेरा चैनल है पावर सोर्स रैंकर चैनल, व्यू ऑफ एंगल.
रैंकर्स व्यू ऑफ एंगल बोल के एक चैनल है जिसपे आप सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। 40 वीडियोस हैं तकरीबन, एक सालों से है, एमपीसी की तरफ से भी है, डिप्लोमा के भी है, सभी सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया अभी आपको यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टाइप पर आपको पहले ये सब्जेक्ट में है क्या, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड व्हिच सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू हैंडल थ्रू दिस ऑनलाइन क्लासेस। There are two subjects. First one is the design of steel structure, and second one that is another subject for you is structural mechanics too. जैसे कि अगर देखा जाए तो पहले जो सोलापुर यूनिवर्सिटी था वहाँ पे यही सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ पे SM3 में था, तो ये बाटों में थोड़ा सा रीअरेंज किए हुए हैं। तो सारे बच्चे पहले से बोलते थे कि SM3 जो उन लोगों का था जो आपके लिए अब SM2 है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है और काफी सारे लेंदी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे देखिए ये एनालिसिस ऑफ ट्रसेस है, एनर्जी मेथड्स है, सेटलमेंट एटसेट्रा, मूविंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइंस ये मॉड्यूल नंबर 2 है। देन केबल एंड सस्पेंशन ब्रिजेस एनालिसिस है, डायरेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, जिसका मेथड का जो डेमो मैंने आपको दिखाया फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का आपके ग्रुप पे डाला हुआ। तीसरा है स्टिफनेस मेथड का, और ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड का। सो देयर आर इन ऑल 6 मॉड्यूल। तो इसमें कितने टॉपिक हमें करना है, किस टॉपिक को आप ऑप्शन में डाल सकते हो, किस तरह से करना है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करता हूँ जो पहला सब्जेक्ट है, पहले एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ जो है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको पहले ले चलता हूँ इंट्रोडक्शन और एडवांटेजेस, देन वी विल स्टार्ट विद द टेंशन मेंबर। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपके ग्रुप पे डाला हुआ है। इसमें सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपके पीडीएफ के तौर पे आपके ग्रुप पे दिया हुआ है, फिर भी बाद में और एक बार दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ डिजाइन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके हम यहाँ पे आ जाएंगे टेंशन मेंबर डिजाइन करने, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ बोल्टेड वेल्डेड कनेक्शन इसमें आ ही जाएगा। जैसे कि टेंशन मेंबर जब हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे रिवेटेड का कनेक्शन यूज करेंगे, उसका डिजाइन ऑटोमेटिकली उसके साथ आएगा, वेल्डेड का करेंगे उसका डिजाइन भी ऑटोमेटिकली उसके साथ आएगा। तो यहाँ पे एनालिसिस एंड एक्सियली इसेंट्रिकली लोडेड कनेक्शंस है, तो इस कनेक्शन के प्रॉब्लम भी हमें करना है। तो पहले आज मैं इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सब्जेक्ट बता दूं कि ये डिजाइन है। डिजाइन में देखिए आपको 2 चीजें याद रखना है। एक, आपका डिजाइन स्टिपुलेटेड टाइम में एग्जाम में खत्म होना जरूरी है। डिजाइन सभी बच्चे कर सकते हैं, एवरीबडी विल टीच यू हाउ यू कैन डिजाइन इन ब्रीफली, दे विल एक्सप्लेन अबाउट इट, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए कि मैं आपको पहले दिमाग में ये बात क्लियर करनी है कि जितना समय आपके पास है एग्जाम में 3 घंटे का है या 4 घंटे का है, पता नहीं, आई थिंक इट इज बी 3 आवर्स। तो जितना समय आपके एग्जाम में उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होना जरूरी है, क्योंकि तो डिजाइन में लेंदी प्रॉब्लम जो हुआ तो भी आपको रिपीट करने की नौबत ना आ जाए। ब्रीफली बताता हूं, अगर एक कनेक्शन को आप डिजाइन कर रहे मान लीजिए, so while designing the target of design is known to you, means for example if you are designing a certain kind of bolted joint, for example suppose you are designing a bolted joint to connect this one is the one of the plate, is it, ये कौन ज्वाइन हो रहा है, ये होने से टाइम के लिए, okay, so here it is the, suppose here it is the first plate and here it is the second plate that you have to join by a someone joint. Let us consider suppose a riveted joint, okay. तो मैं जिस बात को क्लियर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में अगर इसको डिजाइन करने के लिए कहा गया तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स प्रोवाइड करने हैं। तो डिजाइन करने का शॉर्ट मतलब बता रहा हूँ, तो रिवेट का डायमीटर आपको तय करना होगा, रिवेट कितने डिस्टेंस पे डाला जाएगा, यानी पहला रिवेट या दूसरा रिवेट या तीसरा रिवेट, इनमें का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच, वो कितना प्रोवाइड करना है, डायमीटर कौन सा इस्तेमाल करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ बोल्ट्स और रिवेट्स यू हैव टू प्रोवाइड, ये सारे चीजें आपको तय करनी होती है। डिजाइन का मतलब है यू हैव टू डिसाइड टू अचीव द टारगेट। अब अचीव द टारगेट का मतलब ये हुआ कि इस मेंबर पे
मान लीजिए आपको प्रॉब्लम में बताया गया कि इस प्लेट में 100 किलो न्यूटन का लोड कैरी करना है आपको। ओके, आपको इस प्लेट को 100 किलो न्यूटन का लोड कैरी करना है, और ये जो 100 किलो न्यूटन कैरी करने वाले जो दो प्लेट्स है, इनको बाय यूजिंग द सुटेबल रिवेटिंग कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करना इसका मतलब ये लोड लेते हुए, कैरी करते हुए ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड पोजीशन में रहना जरूरी है। दैट इज योर टारगेट ऑफ डिजाइन। यानी जब भी आप ये बोल्ट या रिवेट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे और ये लोड इस पे डाला जाए तो ये कनेक्टेड पोजीशन में बने रहे, दैट इज योर टारगेट ऑफ डिजाइन। अब ये टारगेट ऑफ डिजाइन जो है, तो ये आपको मुकम्मल करने के लिए ये तीन चीजें आपको डिसाइड करनी है। तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ टाइमिंग के बारे में। अब देखिए, आपने डिजाइन स्टार्ट किया, समय चल रहा है एग्जाम में, आपने किसी न किसी डायमीटर को सपोज मान लीजिए 20 किया, सपोज ये 70 लिया, सपोज ये 6 नंबर ऑफ रिवेट्स आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये आपका डिसीजन हुआ, ये आपका डिसाइड किया हुआ डिजाइन का डाटा हुआ। लेकिन डिजाइन कब सही कहा जाएगा? जो भी आपने इनपुट लिया हुआ है, इस इनपुट से जो आउटपुट बन के जो जॉइंट सामने आएगा, उसकी कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन होना जरूरी है। अगर आपने सब कुछ तय किया, ज्वाइंट बनाया, लेकिन उसकी कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन नहीं आ रही है, तो आपका डिजाइन कैरी 0 मार्क्स। यानी कहने वाली बात यह है कि मैं जो टाइमिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपको दो चीजें याद रखनी है। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ टाइमिंग के बारे में, जो टाइमिंग है आप ऐसे इसे सिलेक्ट करना है जो आपने पहला अटेम्प्ट ऑफ डिजाइन किया और आउटपुट देखा, तो उसका कैपेसिटी ऑफ जॉइंट दैट यू हैव डिजाइन्ड मस्ट हैव कैपेसिटी ग्रेटर देन 100 किलो न्यूटन। इस तरह से आपको ये डाटा इनपुट सिलेक्ट करने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्यों? अगर ये आपने सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम में मान लीजिए उसमें 10 मिनट चले गए और आउटपुट देखने के बाद पता चला कि उसकी कैपेसिटी आ रही है 92 किलो न्यूटन, जिसकी जरूरत है 100 किलो न्यूटन, और आपने दिया 92 किलो न्यूटन, यानी आपका डिसीजन जो आपने डिजाइन किया हुआ पार्ट है, that is not up to the mark. It is not capable to carry a load of 100 kilonewton. So definitely you will get 0 marks then. Then your 10 minutes are wasted. Then what you will do in the second part then? You will change your decision. You will try someone another data. Then once again you will find the capacity. Suppose you got it now, here it is as a capacity 110 kilonewton in second attempt. But once again you have lost your 10 minutes, isn't it? Now your capacity is greater than 100 kilonewton. Now your design is okay, and now you are getting the marks. But what's the problem? That you have lose 10 minutes extra. That we have to avoid. That is my first concept of design. मैं जो आपको बताने जाऊंगा डिजाइन करते समय, एक ही चीज सामने लेके आऊंगा कि भाई आपको सही तरीके से डाटा पिक करके आना चाहिए, ताकि आपका पहला ही अटेम्प्ट सही टारगेट, सही निशाने पे जाए। जो भी आपको टारगेट दिया गया, सपोज ये ज्वाइंट का हुआ, कोई और मेंबर लीजिए, कॉलम में सपोज मान लीजिए इस तरह से एक कॉलम है, इस कॉलम पे आपको इस कॉलम पे लोड डालना है। ठीक है, इस कॉलम पे लोड है 1000 किलो न्यूटन। इस कॉलम का सेक्शन आपको डिजाइन करना है। तो आपने सेक्शन जब डिजाइन किया तो आउटपुट कैसा होना चाहिए? इसका सेक्शन का कैपेसिटी जो आपने सिलेक्ट किया है, उसकी कैपेसिटी ऑफ लोड कैरिंग शुड बी एट लीस्ट 1000 किलो न्यूटन। Then your selection of the section is okay and then you will get the marks, isn't it? तो कहने वाली बात है, आपका सिलेक्शन करने के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग किस तरह से बनानी चाहिए, ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरी बात जो है, एक तो है सही समय में कम से कम वक्त में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है, ये सारा इसमें आ गया। यानी क्या है, वहां पर आप डिजाइन करते समय फर्स्ट अटेम्प्ट में सही सेक्शन सिलेक्ट करके आपका टारगेट अचीव करें, ये है आपकी पहली बात। सही है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक तो समय का हुआ, अब दूसरी बात जो है, आप जब डिजाइन करते हो, डिजाइन करते समय जितने सारे आईएस कोड के क्लॉजेस है,
सारे के सारे रेफर हो जाने चाहिए। रेफर हो जाने चाहिए यानी जैसे कि मैं बताऊं अभी यहाँ पे आपको, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप सपोज स्ट्रेस यूज कर रहे हो, किसका, बोर्ड का स्ट्रेस सपोज लेना है आपको, तो बोर्ड का स्ट्रेस जब ले रहे हो तो यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 8.1 में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स, तो ये आईएस कोड आपको दे रहा है टाउ वीएफ, हियर इट इज द शियर स्ट्रेस इन द रिवेट व्हेन द रिवेट इज पावर ड्रिवन, वो बाद में देखा जाएगा, कहने वाली बात है। तो ये 100 आपको यूज करना है, तब ये 100 शेयर के लिए टाउ वीएफ के तौर पे जब आप यूज करोगे तो वहां पे आपको रेफरेंस लिखना है कि मैंने भाई ये 100 टाउ वीएफ का वैल्यू टेबल नंबर 8.1 1984 आईएस कोड से लिया हुआ है। वहां पे अगर आप रेफर करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू नो। देखिए डिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, डिजाइन हर बच्चा करेगा, लेकिन मार्क्स या आपका जो शाइनी होने वाली पार्ट ये है कि आपने सही क्लॉज वहां पे रेफर करने से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये आप यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको उसको पता चलेगा। यानी यहाँ पे 100 मैंने लिया, क्यों लिया, तो आईएस कोड बोल रहा है 8.1 टेबल में शियर स्ट्रेस इन बोल्ट और रोल रिवेट शुड बी टेकन 100, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 100। सो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये समझने के लिए आपको स्पेसिफिकेशन के तौर पे ये सारे चीजें आपके डिजाइन करते समय मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ का जो अभी अभी जो कनेक्शन की बात कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं डिजाइन करते समय देख लीजिए, सपोज यही पार्ट का जो मैं डिजाइन कर रहा था अभी का, तो यहाँ पे जब मैं बोल्ट या रिवेट जो इस्तेमाल करूंगा, इसका जो मैंने सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने 16 mm डायमीटर का रिवेट यूज किया हुआ है, तो 16 mm डायमीटर का रिवेट कुछ इस तरह से होता है, वो बाद में सोचा जाएगा रिवेट इस तरह से। तो इसका जो डायमीटर ये 16 mm है, तो इसमें ये इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो होल है उसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो ये डायमीटर ऑफ होल जो लेना है वो 16 प्लस 1.5 लेना है। अब ये 1.5 आया कहाँ से, हर बच्चा लिखेगा 1.5 बोल के 17.5 लेके करेगा, शायद आपका क्लास में चल रहा भी होगा 17.5 लेके दिखाई भी होगा, ठीक है ना। तो वहां पे देखिए यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि कहाँ पर है ये 17.5, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर एरिया ऑफ रिवेट और बोल्ट होल्स, तो आपको वहां पे लिखना है 16 mm का रिवेट के लिए I am using 17.5 diameter of hole with the reference of code number 8.9.3. The diameter of rivet hole taken as nominal diameter of the rivet plus 1.5 for rivets of nominal diameter, etc., etc. What I mean to say, everywhere जैसे यहाँ पे यूज किया, तो वहां पे जब मैं इसका जब स्ट्रेंथ निकालूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज इट इन शेयर फॉर एग्जांपल ना, तो इन शेयर जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मैं लिखने के लिए टाउ वी एफ यहाँ पे जो यूज करूंगा, तो ये टाउ वी एफ इंटू जो भी मैं अभी आगे जो फॉर्मूला यूज करूंगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये जो टाउ वी एफ मैं यूज करूंगा, तो ये टाउ वी एफ कहाँ से लिया, तो यहाँ पे मुझे रेफर करना है कि ये टाउ वी एफ मैंने यहाँ से लिया है, इज इट, और ये सिग्मा पी एफ मैंने यहाँ से लिया, ये यूज करना। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, तो दो चीजें मैंने बताई, एक समय पे ध्यान देते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपका डिजाइन का अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट अचीव करने वाला लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डेवलप करना है। बहुत सा आसान सा तरीका है, देखिए ना, कॉमन सेंस तो आपके पास होता ही है, मैं आपको फैक्टर्स बताते जाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, अगर मैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ द होल बढ़ाऊं तो इस प्लेट की वीकनेस बढ़ेगी, क्यों, तो इस प्लेट का इस प्लेट का ये सामने से एलिवेशन है, अगर इस प्लेट को टॉप व्यू में देखा जाए तो कुछ इस तरह से प्लेट है वो, ठीक है, और यहाँ पे ये रिवेट का होल है। अगर यहाँ पे डायमीटर ऑफ रिवेट इंक्रीज किया जाए ये यहाँ पे, तो मान लीजिए कुछ इस तरह से हुआ, तो इसमें इस प्लेट का वीकनेस बढ़ते जाएगा, जिस प्लेट का वीकनेस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा मैं डायमीटर कम रखूं, तो कम डायमीटर वाला रिवेट की कैपेसिटी भी कम होगी। अगर मुझे यहाँ पे 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी चाहिए
और मुझे पता चला कि एक रिवेट की कैपेसिटी 25 किलो न्यूटन है। अगर एक रिवेट प्रोवाइड किया जाए वो 25 किलो न्यूटन लोड ले सकता है, तो 100 किलो न्यूटन कैरी करने के लिए मुझे कितने नंबर्स डालने होंगे? सीधी सी बात है, 100 डिवाइडेड बाय 25 इट कम्स टू बी 4, यानी मुझे 4 बोल्टों की जरूरत है। ठीक है, देखिए फिर से आता हूँ। अगर मैंने डायमीटर बढ़ा दिया तो वीकनेस बढ़ेगा, अगर वीकनेस बढ़ेगा यहाँ पे तो प्लेट की स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए मैं अगर कम डायमीटर रखूं तो कम डायमीटर रखने से उसकी स्ट्रेंथ कम आने से मुझे नंबर ऑफ बोल्ट ज्यादा लगेंगे। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा वाला जो बोल्ट डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उसकी स्ट्रेंथ 50 आएगी, तो मुझे 50 से डिवाइड करने के बाद 2 बोल्ट की जरूरत लगेगी, यानी मुझे 2 होल लगेंगे। समझ रहे हो ना बात को? ये इंटर रिलेटेड डाटा होता है। तो डायमीटर बढ़ाऊं तो होल बढ़ेगा, नंबर कम हो जाएंगे। डायमीटर कम करूं तो होल का डायमीटर कम होगा, वीकनेस ऑफ प्लेट कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ होल ज्यादा होगी। तो इसमें किस तरह से सोचना है आपको, है कि नहीं? तो ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है। डिजाइन तो कहीं पर भी मिल सकता है। आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग बनने के लिए एग्जाम में सही समय में एक अटेम्प्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के लिए आपका सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि वो सही निशाने टारगेट पे जाके बैठे, यानी आपका समय बर्बाद ना हो। इसलिए मैं, जैसे मैंने अभी एक फॉर एग्जांपल बताया, मैं आपको ही बताते जाऊंगा, आपका ही इल्यूजन हो जाएगा माइंड में, हाँ ऐसे करने से ये यहाँ पे वीकनेस आएगा, या ऐसे करने से यहाँ पे ऐसे होने वाला। तो आप ही बता दोगे मुझे एट द एंड ऑफ डिस्कशन कि सब ये ऐसे करने से आपका सिलेक्शन सही होने वाला है। कुछ थंब रूल्स भी है, कुछ पावर के फंडामेंटल्स है, कुछ रिवर्स मेथड्स है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बराबर सही निशाने पे जाके बैठोगे, ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें मैं बता रहा था, ठीक है। अब कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जैसे कि सिलेबस में आ रहा था मैं यहाँ पर, तो पहला पार्ट है जो मैंने अभी बताया, आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है, एक एग्जाम का समय और दूसरा सारे आईएएस क्लोड के क्लासेस आपका माइंड क्लियर है, एग्जामिनर को दिखाना जरूरी है, ताकि आपको फुल मार्क्स आ जाए। ये हुआ फर्स्ट बात। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपका समय बर्बाद ना होने के लिए सही थिंकिंग के लिए कुछ डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद आप ही बता दोगे कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सारा चीजें आपको करना है यहाँ पे, आप इसके बाद आप डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब पहले से स्टार्ट करता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पार्ट। ये सारे पीडीएफ में मैंने दिए हुए, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फॉर एग्जांपल पे दिखाता हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हुए, ये डिस्कस करने का पार्ट है, करेंगे। ये सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट है। पहले मैं बता दूं क्या क्या करना है अभी हमें, ठीक है। देन आता हूँ यहाँ पर, इस तरह से मैंने कुछ ये पावर पॉइंट बना के रखे हुए, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि स्टार्ट करते समय मैं आपको हर क्लास जो आईएस कोड में, अब ये जो आईएस कोड का मैंने बताया था 8.1, जब मैं डिजाइन करूंगा, जब मैं आपके सामने बैठ के, जैसे अभी बताया था मैंने, पेंट में डिजाइन करते जाऊंगा, साइमल्टेनियसली आप लिखोगे, कैलकुलेशन भी करोगे, यानी जैसे फिजिकल चलता है वैसे की वैसे आपके सामने हर स्टेप में सॉल्व करते रहूंगा। कैलकुलेशन मेरे साथ आप भी करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप मेरे साथ सॉल्व करने से आपको फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बीच बीच में आपको हर क्लास का ये एब्स्ट्रैक्ट दिखाते रहूंगा। जैसे कि अब ये नेक्स्ट देखिए एरिया, अब ये है, जैसे ये एज डिस्टेंस के बारे में है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया हुआ है। हर क्लास नंबर ये मैंने यूज किया, तो ये वहाँ पे रेफर करेंगे, ठीक है। ये देखिए रिवेट्स एंड, ये जो पेज नंबर 96 की मैं बात कर रहा था, ये आपके इंटरनेट के पीडीएफ में नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दूंगा यहाँ पे 96 का पेज नंबर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पिच ऑफ द रिवेट्स यहाँ पे है, जो वही पेज मिसिंग है इंटरनेट के पीडीएफ सेट में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पिच कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका एब्स्ट्रैक्ट में बताते रहूंगा बीच बीच में। अब जैसे कि टेंशन मेंबर है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये आईएस कोड का मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है। तो ये केस 4 केसेस है, इसमें 4 केसेस किस तरह से लेना है, केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, केस नंबर, ये उसमें 2 केसेस है, जैसे अभी बताया था मैंने, इसमें 2 केसेस है। तो होता रहेगा। तो कहने वाली बात यह है कि मैं बीच बीच में आपको सारे आईएस कोड भी बताते जाऊंगा, कंटिन्यू करते हैं वहीं पे। तो आता हूँ, कमिंग बैक टू अवर यहाँ पे, ओके। सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्टील स्ट्रक्चर, परमिसिबल स्ट्रेसेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह वगैरह, इट विल टेक लॉन्ग डिस्कशन। देखिए
डिजाइन में पैसे कमाने वाली बात है भैया। जिसका डिजाइन मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव एंड हाईएस्ट सेफर, डेफिनेटली ही विल गेट डिमांड, इजंट इट? तो आपको डिजाइन में फ्यूचर है, तो आप जितना सारा नई चीजें बनती जाएंगी, जिसका डिजाइन का फंडामेंटल्स क्लियर है। देखिए डिजाइन तो हर समय नया ही आएगा। आपका डिजाइन किया हुआ एक कॉलम आगे जाके प्रैक्टिस में दूसरे तरीके से, दूसरे सिचुएशन में, दूसरे सेट कंडीशन पे कुछ अलग तरीके से आएगा। अब वहां पे आप किस तरह से उसको एनालाइज करके डिजाइन करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आईएस कोड के सारे कंसेप्ट, हर आईएस कोड का पूरा ब्यौरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये इस तरह से क्लॉज क्यों बनाया हुआ है, इसकी जरूरत क्या है, ये भी मैं बीच बीच में आपको डिस्कशन करूंगा। तो डिजाइन इज अ मोर पार्ट ऑफ डिस्कशन। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं हम इस तरह से। तो ये यहाँ पे लिमिटेड नहीं है कि यहाँ पे किया और बात खत्म हो गई। देखिए जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको डिजाइन के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो डिजाइन इज ए क्रिएटिव पार्ट, और जब आपका क्रिएटिव माइंड है तभी आपको सर्विस का मौका मिलेगा। तो क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए ये सारे डिस्कशन होना जरूरी है। अब परमिसिबल स्ट्रेसेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह ये सारे एक्सप्लेन कर, जो पुराने बच्चे हैं जो आप पहले से है अपने क्लासेस को वो जानते हैं। मेरा जो डिस्कशन और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो काफी लेंदी होता है, जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट पहले क्लियर करता हूँ मैं। तो डिजाइन में तो बहुत सारी चीजें क्लियर करनी होती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मेथड्स ऑफ डिजाइन, ये सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। यहाँ पे मैं सारा पार्ट बताऊंगा। फिर बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा, टेंशन मेंबर से डिजाइन करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे रिवेटेड का टेंशन मेंबर करूंगा, बोल्टेड का टेंशन मेंबर करूंगा, वेल्डेड का करूंगा, एक्सेली लोडेड का करूंगा। तो ये सारे पार्ट हर चैप्टर में आएंगे और एग्जाम में वैसे ही आते रहता है मोस्टली। तो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म करूंगा, फिर टेंशन मेंबर का आऊंगा। टेंशन मेंबर में आते समय में रिवेटेड का पार्ट एक प्रॉब्लम में लेके उसको खत्म करके दूसरे प्रॉब्लम में जाऊंगा। फिर बाद में आता है एक्सेल लोडेड मेंबर में, टेंशन मेंबर और दूसरा है कॉम्प्रेशन मेंबर। दो मेंबर है यहाँ पर, a member carrying tensile nature of forces and member carrying compressive forces। देन है यहाँ पे बीम। अब देखिए आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हो, तो यहाँ पे बीम में देखिए बहुत सारे क्लॉजेस है। अनसपोर्टेड बीम, लैटरली सपोर्टेड बीम, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस यूज करने हैं। देन इंडस्ट्रियल रूफिंग, यहाँ पे दो पार्ट है, गैंट्री गर्डर और रूफ ट्रसेस। अब इनमें से कौन सा करना है, कौन सा ऑप्शन में डालना है, ये बाद में तय करेंगे। करना है तो सभी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं किसी ज्यादा पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते रहूंगा और किसी पार्ट पे आपको एज अ पार्ट पे, जैसे अभी यहाँ पे दो पार्ट है तो गैंट्री गर्डर से ज्यादा रूफ ट्रसेस पे मैं, तो रूफ ट्रसेस आर नॉर्मली यूज्ड एवरीवेयर। गैंट्री गर्डर इज स्पेशली फॉर सर्टन साइट ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन। तो मेरा मोर फोकस इस पे रहेगा ताकि आपको फ्यूचर में ये काम आने वाली चीज है। तो यहाँ पे मैं बेसिक बताऊंगा, तो कौन सा ऑप्शन में डालना है, क्या करना है, ये आने वाले समय में हम तय करेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऑप्शन के लिए, यहाँ पे दोनों में से एक, ठीक है। कॉलम और कॉलम बेसिस में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक हिंज कोलैप्स मैकेनिज्म एटसेट्रा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ये थ्योरेटिकल पार्ट में आपको दूंगा पीडीएफ के तौर पर, इस पे कुछ डिस्कशन करने होते हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन है, मैकेनिज्म वगैरह वगैरह, ये करेंगे। अब क्या करना है, किस पे प्रॉब्लम डिजाइन करना है, ये मॉड्यूल नंबर 6 पे थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना है आगे जाके। इस पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या छोड़ना है, क्या इसमें कंसंट्रेट करना है। दूसरा एक एंट्री गर्डर के बारे में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है फ्यूचर की तरीके से। तो ये सारे पार्ट नॉर्मल, देखिए अगर आप नॉर्मल किसी भी डिजाइनर के पास एज अ इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, तो नॉर्मल डिजाइन ही आएगा ना। नॉर्मल इंडस्ट्री का डिजाइन, ट्रस आएगा, बीम आएगा, कॉलम आएगा। तो ये सारे मेंबर्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब वही कई सारे सोलापुर के डिजाइनर के पास अपने बच्चे ट्यूशन के 25 सालों में से आने वाले गए, पिछले 25 सालों में से जो बच्चे हैं वही पे है, करते हैं वहाँ पे, बताते रहते हैं क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में आगे। तो मेरे को जब समझ में आता, वो बोलते सर ये मेजर पार्ट यही हमारे काम आता है। सोलापुर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या बनते हैं, इंडस्ट्रियल शेड बनते हैं। इंडस्ट्रियल शेड में तो ये सारी चीजें होती रहती है। अरे यार अभी एडमिट हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म होते समय, चलो कोई बात नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी है कि हमें यहाँ पे कौन सी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है और किसे क्या छोड़ना है, ये बाद में डिस्कस करके तय करेंगे।
तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में 5 मिनट में बात करूंगा, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में टेंशन मेंबर पे आऊंगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट इज अब तक मैंने 35 मिनट्स में क्या बातें की, तो दो बातें की। एक था आपको एग्जाम के तौर पे मार्क्स ज्यादा आने के लिए दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करनी थी। एक, 3 घंटे में बराबर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सही तरीके से 100% करेक्ट आके अटेम्प्ट करना है। उसके लिए लाइन ऑफ थिंकिंग बनाने के लिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डिजाइन सही निशाने सही टारगेट पे आना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। और दूसरा है, आपको एग्जामिनर को बताना है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईएस कोड इज क्लियर, कि मैं यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, वो उसको हाईलाइट करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ये दो चीजों पे मैंने पहले इनिशियली बताया था, फिर बाद में मैंने इंट्रोडक्शनरी पार्ट पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके बताया था क्या करना है, ठीक। फिर बाद में सिलेबस के बारे में ये सारा बताया था। अब आता हूँ ये यहाँ पे परमिसिबल, अरे यार एनोमेट करने मत बताओ, ये मत करो ऐसी चीजें, मैं करूंगा फिर बंद कर सकता हूँ मैं एनोट, यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। परमिसिबल स्ट्रेसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे जो है तो ये बात मैं थोड़ा सा क्लियर करके रुक जाता हूँ आज के लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं टेंशन मेंबर से स्टार्ट करूंगा। तो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस है क्या चीज यार, देखिए नाम ही बता रहा है परमिसिबल स्ट्रेसेस। थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो नॉर्मली जो स्टील है, स्टील का जो एफवाई होता है यानी यील्ड स्ट्रेस, ये होता है 250। नॉर्मल में बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्टील, नॉर्मल स्टील जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसका यील्ड स्ट्रेस 250 होता है। तो यील्ड स्ट्रेस की रेंज है 240 भी है, 260 भी है, कुछ भी है, और बहुत सारे एफवाई की वैल्यूज भी है, लेकिन मोस्टली बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग एफवाई 250। तो पिछले सब्जेक्ट में जाते हैं, जो आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर था, वहां पे आपने देखा था ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट था, यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट था, ये अल्टीमेट स्ट्रेस था, ये ब्रेकिंग पॉइंट था, और यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, यानी हियर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। as the stress increases the strain increases, it is directly proportional up to this point, so that's why this is also called as the limit of proportionality। जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ते जाएगा उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन भी बढ़ता है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये यील्ड स्ट्रेस 250 है, यानी क्या होता है, यहाँ तक जो स्टील का बिहेवियर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है। प्रोपोर्शनल वाला यानी फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन कॉलम ऑफ स्टील, ओके, हियर इट इज अ वन स्टील कॉलम, लेट अस अप्लाई सर्टेन लोड ऑन इट। जैसे आप ये लोड इस पे पुटअप करोगे, इसमें स्ट्रेसेस डेवलप स्टार्ट होगा। जैसे इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो ये जो डेवलप होने वाला स्ट्रेस है एंड अलोंग विद दैट स्ट्रेन आएगा। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन ऑफ और ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे ये लोड डालोगे तो इसके कॉलम के डायमेंशन में जो स्ट्रेस आने की वजह से जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो चेंजेस से आने वाला ये स्ट्रेन है। इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उनका बिहेवियर क्लियर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। उसके बाद ये कर्व स्टार्ट होता है, यानी जिस प्रोपोर्शन में स्ट्रेस बढ़ रहा है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। तो यहाँ पे आपको इस दौरान आपका बिहेवियर ऑफ डिजाइन यानी मटेरियल इज क्लियर है, तो हम इसी पार्ट ऑफ द स्ट्रेसेस जोन में इस मेंबर में स्ट्रेसेस डेवलप होने देंगे, इससे ज्यादा जाने नहीं देंगे, क्योंकि तो उसका बिहेवियर आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे 250 है, तो ये 250 इज द यील्ड स्ट्रेस। अब देखिए 2 मिनट में बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1000 किलो न्यूटन का लोड डाल दूं और इस स्टील की कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेस 250 है, ध्यान से देखिए, मैंने एक सेक्शन सिलेक्ट किया IS MC 200 यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन यूज किया 200 साइज वाला। ध्यान से देखिए, 1000 किलो न्यूटन लोड कैरी करने के लिए मैंने इस सेक्शन को सिलेक्ट किया
जिसकी यील्ड स्ट्रेस की कैपेसिटी 250 है, अगर मैं डिजाइन करते समय यहाँ पे कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स में यील्ड स्ट्रेस का कैपेसिटी 250 की जगह 250 लेके चला गया आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो स्टेप्स डिजाइन के रेफर किए, उस रेफर के बाद मेरा जो आउटपुट आया, इस सेक्शन का आउटपुट मिला। तो इस सेक्शन में मैंने इस स्ट्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन किया। इसका मतलब इस सेक्शन में आने वाला स्ट्रेस 250 है। कब? जब 1000 किलो न्यूटन लोड आएगा। यानी 1000 किलो न्यूटन के लिए मैंने डिजाइन करते समय इस सेक्शन का आउटपुट निकाला बाय यूजिंग दिस स्ट्रेस। इसका मतलब जब लोड 1000 आएगा, जब इस सेक्शन में स्ट्रेस आएगा 250, जो कि हाईएस्ट है, उसके बाद स्ट्रेस अलाउड नहीं है। यानी आप इस मेंबर में स्ट्रेस 250 मानकर डिजाइन करके 1000 किलो न्यूटन लोड ले रहे हो। जब 1000 किलो न्यूटन लोड डाला, इस सेक्शन में स्ट्रेस 250 आएगा, उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी खत्म। यानी इस सेक्शन का कैपेसिटी 1000 किलो न्यूटन पे खत्म होता है, जो कि उसकी कैपेसिटी 250 आपने पूरा का पूरा इस्तेमाल किया। तो आगे जाके मान लीजिए भैया थोड़ा सा कुछ लोड में बढ़ोतरी हो गई, बाय चांस किसी वजह से कंस्ट्रक्शन का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी और पर्पज से यूज किया, बाय चांस कहीं लोड बढ़ गया और लोड बढ़ के सपोज 1100 किलो न्यूटन हुआ, तो क्या होगा? 1000 किलो न्यूटन डिजाइन करते समय ये आपका आउटपुट था, और इस आउटपुट के जो सेक्शन है उसमें स्ट्रेस था 250, जहां तक वो ले सकता है, उसके आगे कैपेसिटी नहीं है। जब 1000 से ज्यादा लोड आएगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस की वैल्यू 250 से ज्यादा जाएगी, जो इस सेक्शन की कैपेसिटी है नहीं, तो वो फेल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो पहले कम करके चलो ना। तो पहले मैं जब 1000 किलो न्यूटन का लोड लेके चलूंगा आगे, तो 250 कैपेसिटी है मुझे पता है, लेकिन मैं 250 की जगह 165 लेके आगे चलूंगा। यानी क्या हुआ? देखिए मैंने ऐसे कर रहा हूं, मैं इसी कॉलम को डिजाइन करते समय, ठीक है, समय चला जा रहा है, 1000 किलो न्यूटन का लोड, FY 250 वाला स्टील, मेरा सेक्शन ISMC 200, मैंने डिजाइन करते समय 165 लेके निकला। लास्ट बता के रुकता हूँ। 1000 किलो न्यूटन लोड लेते हुए मैंने सेक्शन में 165 लेके अगर ये सेक्शन बनाया होगा, तो जब 1000 लोड आएगा तो इसमें स्ट्रेस 160 पे आएगा, उसकी कैपेसिटी 250 है। जब लोड बढ़ेगा तो 165 से बढ़ के 250 के अंदर ही रहेगा, फेल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे डिस्कशन है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। मैं हर समय आपको लिंक भेजता रहूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू। देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। आई विल पुट द लिंक ऑन योर ग्रुप।